Hello. Hi, Dr. Dharamdeep. Hello. Hello. Hi, Dr. Dharamdeep. This is Rati Malik. Hi. Hi, Yes. Doctor. You can start your session. Tabassum ma'am, over to you. Shall I start? Doctor, Yes, just start. a second. I would probably want to introduce you. Okay. So, hi everyone. I hope you all remember me. I'm Tabassum from Ashiana Karan, and I consider it as a wonderful opportunity to be a part of this very useful and informative session. And I thank Ashiana Housing and Ashiana Supermoms for this opportunity. Also, before I begin the session, I would want to introduce Dr. Dharamdeep. Dr. Dharamdeep Singh is an experienced psychiatrist, active in this field for last 6 years. He hails from Jaipur. Apart from dealing with adult psychiatry, de-addiction, sexology, he also has a very keen interest and expertise in handling the cases of related to child and adolescent behavior and school-related problems. Rationality of treatment is always an integral part of management plan, devised for each and every patient, which includes both pharmacological and psychotherapeutic interventions. His patience and empathetic approach are his assets, which add on to his clinical skills. So this was a very brief introduction of Dr. Dharamdeep Singh. Dr. Dharamdeep, I welcome you on behalf of Ashiana Supermoms. Very warm welcome from all of us. I would want to begin the session, and I would want you to start with a very basic question, probably. Who is a psychiatrist or a counselor? Okay. Thank you, Tabassum, for introducing me. I would also like to take this opportunity to thank Ashiana Group and Asra Foundation Jaipur to speak on this very important topic. And recently, we all are witnessing a huge burden on the mental health of the general population, resulting in many unwanted consequences. So the first question you asked me is, what are the basic differences between a counselor or a psychiatrist? So I think I should be using Hindi so that it is Yes, please. I think communicable to everyone. everybody can understand. Yeah. Everybody will be comfortable with that. तो जो एक साइकाइट्रिस्ट होता है, जैसे कि अगर हिंदी में कहें हम मनोचिकित्सक, और काउंसलर होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि साइकाइट्रिस्ट डायग्नोसिस से रिलेटेड जो हमारा काम है, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आमतौर पर हम जो लोगों के अंदर गलतफहमियां यही होती हैं कि अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो हमेशा एक्सट्रीम्स पे ही सोचते हैं कि साइकोटिक जो कंप्लेंट्स हैं वही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और साइकाइट्रिस्ट उनको ही डील करता है, जबकि हर उम्र के लोग, चाहे वो कोई बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, उसमें किसी ना किसी की कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको डायग्नोस करना, उसको डिस्टिंग्विशली डिस्क्राइब करना, उसके लिए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बनाना, ये साइकाइट्रिस्ट का काम होता है। काउंसलर का काम होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकली मैनेज करना चीजों को। इसमें थेरेपीज हो सकती हैं आपकी। साइकाइट्रिस्ट हमेशा एक डॉक्टर होता है जिसके पास में एमडी की डिग्री होती है, सुपर स्पेशलाइजेशन है उसका साइकाइट्री। काउंसलर जो है वो मोस्टली जो है हमारे स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर्स किए हुए, बट दे हैव नॉट
they have not been educated in medical college about the basic medicines or surgery. So this is the basic difference between the two. Psychiatrists are mostly related to devising the treatment plan, which includes both pharmacological and non-pharmacological interventions, दवाइयाँ और non-pharmacological चीजें जो therapies हैं, वो दोनों, उन therapies को apply करना counselor का, psychologist का काम होता है. Okay. So इससे हमें पता चला कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर कौन होते हैं. अब हमें ये कब पता चलेगा कि हमें कब जाने की जरूरत है किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास? काउंसलर के पास हम कब जाते हैं या साइकाइट्रिस्ट के पास हमें कब जाने की जरूरत होती है? क्या आप इसके लिए हमें गाइड कर सकते हैं? ठीक है. इसके अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, बेसलाइन बिहेवियर को समझना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति का. अगर हम किसी भी व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकती है. आप अपने आसपास अगर लोगों को घूम करके देखें तो आपको कई लोग मिलेंगे कि जो बहुत बोल हैं, चीजों को काफी अपफ्रंट होकर के बोल सकते हैं किसी को भी. कई लोग बहुत शर्मीले से स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर कम बोलना पसंद करते हैं. ठीक है. कई लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो कि काफी गुस्सैल होते हैं. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने गुस्से को नियंत्रित करना जानते हैं. तो अगर ये बेसलाइन बिहेवियर है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी से हटके, और उस सिग्निफिकेंट चेंज की वजह से जो उसके बिहेवियर और इमोशंस में जो चेंज आ रहे हैं, इसकी वजह से उसके निजी जीवन में, चाहे वो खुद से रिलेटेड चीजें हों, जैसे कि हम बात करें सेल्फ केयर की, वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, खाने पीने का, अपने रहने का ध्यान, इन चीजों में अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां हुई या फिर अपने कार्य संबंधी जो जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अगर हैम्पर होती है और सेल्फ केयर अगर हैम्पर हो रही है, अगर, और ज्यादातर हमारा इसमें एक ये होता है कि अगर पिछले 2-3 हफ्ते में ये चीजें ज्यादा हैं, आपको ज्यादा परेशान कर रही हैं और आपकी लाइफ पे डायरेक्टली अगर इनका इम्पैक्ट हो रहा है, then you are supposed to consult yourself with a psychiatrist. साइकाइट्रिस्ट आपको अपनी बीमारी के बारे में जानकारी देगा, उसका डायग्नोसिस बताएगा अगर कोई बीमारी है और उसकी क्या गंभीरता है उसके बारे में बताएगा. अब उस गंभीरता को देखते हुए अगर ये माइल्ड स्टेज में ही है इलनेस, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन जो है, अपनी अगर माइल्ड डिप्रेशन से कोई भी पेशेंट सफर कर रहा है तो उसको कभी दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती. अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करे वो, या बिहेवियरल एक्टिवेशन करे, एक्सरसाइज करे, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अगर ये नॉन फार्माकोलॉजिकल रेमेडीज हैं वो काम में लेगा तो उससे अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है. तो अगर इनकी आवश्यक, और इसके अलावा कई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं, मतलब सोचने की जो क्षमता है व्यक्ति की, सोचने का तरीका है, वो कई बार डिप्रेसिव लोगों के अंदर बदल जाता है, एंजाइटी वाले लोगों के अंदर भी चेंज हो जाता है. इनको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या विकृत सोचने की विकृत मानसिकता है, सोचने की शक्ति. इसमें क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन होने लग जाता है कई बार चीजों का. कई बार हम एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ी समस्या मानने लग जाते हैं, हमारी टनल विजन हो जाती है कि अपने किसी भी वर्क प्लेस पर अगर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया गया और मैं टाइम पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो दिमाग में ये आ सकता है अगर मैं परेशान हूँ तो कि मैंने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया. हो सकता है ये प्रोजेक्ट मैंने टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो बॉस है वो नाराज होगा, नाराज होकर के हो सकता है सब लोगों के बीच में मुझे डांट दे, सब लोगों के बीच में मुझे डांट देगा तो सबके बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, फिर हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल दें, हो सकता है कि इसके बाद में मुझे दोबारा नौकरी नहीं मिले, मैं जॉबलेस हो जाऊं, हो सकता है मैं फैमिली को नहीं संभाल पाऊं. तो एक छोटी सी चीज से, प्रोजेक्ट डिले से होकर के बात वहां तक पहुंच गई. इसको जनरलाइजेशन कहते हैं हम, कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही आदमी देख पाता है और उसके सोल्यूशन से ज्यादा वो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है. तो इस परिस्थिति में जो है उसके
उसको ज्यादा दिक्कत इससे आने लग जाती है कि वो जो अपना करंट परफॉर्मेंस है वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से नहीं दे पाता है। तो ऐसे में जरूरत है कि आप इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से फाइट करने के लिए किसी काउंसलर की सलाह लें। वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए आपको ये बताएगा कि हाँ, आपकी जो सोचने का तरीका है उसमें ये कमियां हैं और इनको बदलाव इनमें हम करें, उसके लिए हम कुछ एक चीजें हैं जो कर सकते हैं। उसके लिए थॉट डायरी है, वो मेंटेन करनी चाहिए। प्लस साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी परेशानियों को खुद तक सीमित रख करके उन्हें बहुत बड़ा बना लेने से अच्छा है हम उसको एक नया पर्सपेक्टिव दें। हम किसी और व्यक्ति से, हमारे कलीग से खुलकर बात करें कि मुझे इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है, या फिर इसमें क्या मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सही है या गलत है। तो हम उनका बेहतर तरीके से उपाय जो है वो कर सकते हैं, बजाय हम अपने ही जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उन पे एक्ट करें और उसको हमारे लिए इतना बड़ा बना लें कि कई बार वो हमारे जीवन से भी बड़ी हो जाती है और हम हमेशा परेशानी में ही जीते रहते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये हमारे बिहेवियर से, हमारे सोच से, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग से रिलेटेड है। नेगेटिव तो ऑटोमेटिक थॉट्स। इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। हमें कब पता चलेगा कि एक्चुअली में हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं एक नॉर्मल बिहेवियर से? एक आम आदमी को जी। शायद उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि हम नॉर्मल बिहेवियर से नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं या हमें डिप्रेशन होने जा रहे हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें एक काउंसलर की या साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है? साइकाइट्रिस्ट, जैसे कि आपने बताया, शायद वो एक नेक्स्ट स्टेज है, पहले हमें काउंसलर को मिलना चाहिए, राइट? नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फर्स्ट यू शुड कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट, and if the severity is not as much as it requires for any medications, then you should go for a counselor. So first of all you have to break this misconception. Psychiatrist is the one who is going to decide how severe the illness is. कितनी गंभीर बीमारी है उसका निर्णय साइकाइट्रिस्ट करेगा। उसकी गंभीरता के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि इसको हमें दवाइयों से मैनेज करना है या इसको हमें काउंसलर से मैनेज करना है। मैं एक और चीज, एक डिस्टिंग्विशन आपको देना चाहूंगा कि काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये भी दो अलग चीजें हो सकती हैं। मैं भी आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ। काउंसलिंग का मतलब होता है कि एक बेसिक सपोर्ट देना। हमारे घर वाले भी हमारी काउंसलिंग करते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत हो गई, अगर बेटे के मार्क्स कम हो गए तो उसके पेरेंट्स उसके पास में आके उसे समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अब तुम मेहनत करना। तो वो भी एक तरह की काउंसलिंग है कि अभी भी आगे हम आगे इसको सुधार सकते हैं। लेकिन जो है साइकोथेरेपी है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको डिलीवर करते हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिलीवर की जाती है। तो और वो काफी लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें आपको काफी ओबीडियंट होना पड़ता है, काफी उसमें होमवर्क्स वगैरह है वो टाइमली और रूटीनली आपको करने पड़ते हैं। एक सवाल आपने पूछा था कि डिप्रेशन के जो साइन सिम्टम्स हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन। या दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, सो डिप्रेशन पहले तो मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत कॉमन है। जो लोगों के अंदर सबसे पहले जो एक ऑर्थोडॉक्स इसके बारे में विचारधारा है पुरानी, वो ये है कि जैसे कई बार बच्चों को हम कह देते हैं, अरे इतना सब बच्चा क्या, तुझे क्या डिप्रेशन हो सकता है, अरे तेरे पास में सब कुछ तो है, तो तुम्हें किस तरह से डिप्रेशन हो सकता है। तो जेंडर, एथनिसिटी या फिर फाइनेंशियल प्रोफाइल या फिर एज, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं या फिर कि संभावनाओं को बता सकती हैं कि डिप्रेशन की संभावनाएं कितनी है और कितनी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज के अंदर, किसी पर्टिकुलर जेंडर के अंदर कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। हो सकता है, और ऐसे काफी केसेस हमारे सामने आते भी हैं। बच्चों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन ये है। डिप्रेशन के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, ज्यादातर हम ये देखते हैं कि अगर पिछले 2 किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कुछ प्रमुख चेंजेस हैं ये देखने को मिले, जो मैं आपको बताने वाला हूँ,
तो हम मान सकते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। सबसे पहला लक्षण है परसिस्टेंट एंड परवेजिव लो मूड, मतलब हर वक्त उस व्यक्ति का मन उदास रहता है, वो किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, और परवेजिव है मतलब उसका इम्पैक्ट है ग्लोबल है, उसकी सारी फैकल्टीज में, उसके सारे काम में इसका फर्क पड़ रहा है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है चीजें, उनसे दूर रहने की कोशिश करता है उखड़ा उखड़ा, और कितनी भी खुशी की कोई चीज ना बताई जाए उसके सामने तो भी वो खुश नहीं हो पाता है। तो परसिस्टेंट एंड परवेजिव लो मूड तो ये पहला सिम्टम है डिप्रेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है लो एनर्जी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो मैनिफेस्टेशंस है स्पेशली विमेन के अंदर, महिलाओं के अंदर लो एनर्जी की कंप्लेंट्स है, वो ज्यादातर हमें देखने को मिलती हैं, कि थकान महसूस करना हर वक्त, और खास तौर पर ये जो थकान वाली शिकायत है वो सुबह के वक्त लोग बताते हैं डिप्रेशन के केसेस में, कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो ऐसा शरीर पूरा टूट रहा होता है, ऐसी इच्छा होती है हम बिस्तर से उठे ही ना, या ऐसी नींद नहीं आ रही है लेकिन ऐसी इच्छा होती है कि हम पड़े ही रहें। तो ये हर वक्त थकान महसूस होना। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए जानने की, वो ये है कि जो डिप्रेसिव व्यक्ति होता है उसको जो ये थकान होती है, वो एक बार अगर अपने रोजमर्रा के काम करना शुरू कर देता है तो इस थकान में सुधार भी आता है। लेकिन ये एक विशेष साइकिल है जो रोजाना होता रहता है, फिर उसको कल भी इसी तरह से थकान रहेगी, उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा, ये हर वक्त बना रहता है। ठीक है, सुबह ज्यादातर इसको हम देखने को मिलता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज। ये बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्वेबल होता है। अगर आप देखेंगे तो कई लोग हमारे साथ में आसपास हम देखेंगे कि पहले हमारे साथ में फिल्म देखने जाता था, हमारे मन में डाउट आ रहा है यार कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, हमें मना कर देता है कि नहीं यार मेरा मूड नहीं है। पहले हमारे साथ में जो टॉक्स हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, साथ में बैठता था, किसी भी तरह की बात करता था, ठीक है, लेकिन वो आजकल रिफ्यूज कर देता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, जो कि उसकी बेसिक पर्सनैलिटी का पार्ट हुआ था। पहले खेलने के लिए आता था शाम को, किसी भी तरह से टेनिस, बैडमिंटन या दूसरी चीजें अपनी तरफ से परस्यू करता था अपनी हॉबीज को, कि उसको जो काम करना पसंद है वो कर रहा है काफी अच्छे से। लेकिन वो सारी एक्टिविटीज अगर वो बंद कर दे जो कि उसकी बेसिक हॉबीज का, उसके इंटरेस्ट का पार्ट हुआ करती थी, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और मेजर साइन है डिप्रेशन का। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने आपको इन कोर फीचर्स बताए हैं, इन कोर फीचर्स में से कम 2 मौजूद होने चाहिए अगर हम किसी को डिप्रेसिव बोलते हैं तो, और अगर एक भी अगर मौजूद होता है तो हमें उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना ही चाहिए। इसके अलावा कई नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी होती हैं कि फ्यूचर को लेकर नेगेटिव आइडियाज आना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, हेल्पलेसनेस महसूस करना, वर्थलेसनेस, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता लाइफ में, मैं वर्थलेस हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पाना चीजों के ऊपर, बार बार छोटी मोटी चीजें भूल जाना, कभी गैस चालू करके भूल गए, ध्यान हमारा नहीं था, कभी हम हो सकता है ताला लगाना भूल गए, ठीक है, कभी कोई काम बताया था पैसे रख के भूल गए। ये सारे जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर एम्प्लॉयड लोग हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, उनके अंदर एक कॉमन साइन है डिप्रेशन का। वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है अगर पिछले 1 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 10% ऑफ बॉडी वेट तक लूज कर देते हैं लोग सिवियर डिप्रेशन के केसेस में। वो कहते हैं भूख ही नहीं लगती, और ऐसा सच में होता है, वो भूख नहीं लगती उनको बिल्कुल भी, वो खाना नहीं खाते हैं, उनको ये भी एक बहुत बड़ा टास्क लगने लग जाता है कि यार कौन खाना लेने जाए, कौन खाए, फिर पानी पिए। वो अपने आप को लोगों से अलग करने लग जाते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते बिल्कुल भी, इरिटेट होने लग जाते हैं वो अगर कोई व्यक्ति प्रयास भी करता है उनसे बात का। तो इसमें कई लोग मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं कि यार ये तो पता नहीं आजकल ऐसे चिढ़ने लग जाता है इसके पास में जाते हैं तो हमें इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि अगर वो इरिटेबल हो रहा है तो कहीं उसमें दूसरी चीजें तो नहीं है, कहीं दूसरे लक्षण तो नहीं है। और इन सब चीजों का अगर सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसकी खुद की केयर पर, वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है,
वो अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को सही से वो नहीं निभा पा रहा है, अपना वर्क प्लेस जाना उसने बंद कर दिया है, अवॉइड करता है, वहां परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति डिप्रेशन से सफर कर रहा है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, और विशेषतः महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के अंदर विटामिन D3, B12 डेफिशिएंसी और थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा कॉमन है पुरुषों की तुलना में। तो ये कुछ एक मेडिकल कॉजेज हैं जिनमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। कोई भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हो, यानी कि लंबे वक्त से किसी भी प्रकार से कोई फिजिकल इलनेस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, एक बर्डन है। अगर वो है तो भी व्यक्ति जो है डिप्रेस्ड महसूस कर सकता है। एक आप अगला सवाल पूछेंगे? अभी एक सवाल आया है आकांक्षा निगम जी की तरफ से। हाउ डू यू प्रिवेंट सिचुएशन फ्रॉम गेटिंग टू स्ट्रेसफुल टू मैनेज? इसमें डॉक्टर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन सेम है, और अगर नहीं है तो क्या आप मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है और डिप्रेशन क्या है? ठीक है। ये जानना स्ट्रेस चाहते हैं कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम स्ट्रेसफुल फील करने से अपने आप को। सबसे पहला तो मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताना चाहूंगा। स्ट्रेस इज ए प्रीकर्सर ऑफ डिप्रेशन। कि स्ट्रेस एक इवेंट है, वो कैसा भी इवेंट हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के यहाँ पैसे की अगर कोई परेशानी है, घर में कोई बहुत ही बुरी स्थिति रही है, किसी भी तरह से भावनात्मक, किसी भी तरह का कोई लॉस है, या कोई दूसरी पारिवारिक परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से दिक्कत आई है, तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, तनाव जिस हिंदी में बोलेंगे। और इसकी वजह से दोनों चीजें हो सकती हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है और एंजाइटी भी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो स्ट्रेस एक प्रीकर्सर है, एक जिसकी वजह से या तो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो सकता है, या फिर उसमें किसी तरह का कोई एंजाइटी डिसऑर्डर वो प्रेसिपिटेट हो जाए। एक सुसाइड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा। आमतौर पर जो अवधारणा ये रहती है कि हमारे साथ में कई बार कई लोग होते हैं, ये कहते हैं यार अगर यार मैं खत्म हो जाऊं तो किसको फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता है कि यार ये इतनी नेगेटिव बातें कर रहा है तो ये कुछ गलत नहीं कर ले। और ऐसी परिस्थितियों में कई बार हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि यार लेकिन मैं इसको बोलूंगा ना तो क्या पता ये हो सकता है वैसे तो नहीं करे पर मेरे बोलने पे कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिससे हमें निजात पानी होगी। कि अगर मैं किसी व्यक्ति को ये कहूंगा कि यार तेरे दिमाग में कहीं, तेरे मन में कहीं ऐसा प्लान तो नहीं चल रहा है कि यार मैं खुद को मार लेता हूँ या सुसाइड कर लेता हूँ, तो वो उसे ट्रिगर नहीं हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई भी इस तरह का कोई प्लान कर रहा है या उसके दिमाग में इस तरह के कोई विचार आ रहे होते हैं और वो आपके सामने बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है अभी भी। और हो सकता है यदि आप डायरेक्टली उसको क्वेश्चन कर ले कि यार अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, क्या तुम्हारे कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा, हो सकता है वो आपसे मदद मांग ले, जो मांगने में वो हिचकिचा रहा हो अब तक। क्योंकि हमारे यहाँ उदाहरण यही है कि किसी भी प्रकार से अगर डिप्रेशन को कोई स्वीकार कर ले तो उसको कई बार एक सामाजिक अवधारणा पुरानी ये है कि उसको कमजोर आंका जाता है। तो हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, डिप्रेशन किसी की चॉइस नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बीमार है, वो उसकी चॉइस नहीं है। और अगर आप कहो कि यार तू क्यों डिप्रेस होता है, तो है ना तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसा कहने से भी वो उससे बाहर आ जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे, विस्तार में जानकारी लेंगे, तो हो सकता है आपको वो महत्वपूर्ण सूचना मिल पाए जिसके आधार पर उसको आप वक्त रहते सही मदद मुहैया कराएं और हम जो है उसके जीवन को बेहतर बना पाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन है निक्की जी की तरफ से, और कविता जी ने भी सिमिलर ही पूछा है कि क्या बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, अगर हाँ है तो कैसे? और कविता जी जानना चाहती हैं कि अगर ऑल ऑफ अ सडन एक स्टूडेंट जो है, एक बच्चा जो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो हम उससे कैसे डील करें, उसको
जी जी स्पेशली हाँ, बुलिंग से ये जो डिप्रेशन जी होता है या मैं स्ट्रेस समझ होता है, उससे हम कैसे डील करें? ये जो टॉपिक है मेरे बहुत करीब है और काफी मैं इसमें काफी इंटरेस्टेड भी हूँ और काफी लंबा टॉपिक है, मैं इस पे घंटों बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूंगा। अगर एक बच्चा है तो आप ये मानिए देखिए कि वो है ना, उसकी अभी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई है, उसके अंदर कोपिंग स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुए, उसे नहीं पता कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना होता है, तो उसके इमोशंस को प्रिडिक्ट कर पाना इज ए हरक्यूलियन टास्क। इस स्थिति में ये बहुत मुश्किल हो जाता है जान पाना कि यार इसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत है या नहीं है। लेकिन बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है डिप्रेशन की शिकायत, और खास तौर पर कुछ एक चीजें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। सबसे पहला तो बच्चे से रिलेटेड चीजें ही हो सकती हैं। अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला तो जो है अक्सर माता पिता में देखा जाता है, अपने दो बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, सिबलिंग कंपैरिजन, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दो बच्चे हैं, वो दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ना तो पहला दूसरे की तरह हो सकता है ना दूसरा पहले की तरह हो सकता है। तो कई बार ये होता है कि देख तेरा छोटा भाई तेरा छोटी बहन ये तो कितना अच्छा कर रहा है पढ़ाई में, तेरे से तो होता ही नहीं है, इसकी तो बुद्धि कम है। ठीक है, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। सिबलिंग कंपैरिजन, सिबलिंग राइवलरी जितना हो सके हमें उस अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कई बार बुलिंग है, उसके लिए हमें बच्चे से क्लियरली पूछना चाहिए उसको बुली किया जा रहा है। कई बार नाम बदल बदल के हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिलीज में बच्चों को उनके नाम को तोड़ मरोड़ करके, या कई बार हो सकता है उनके कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे ही उनके नाम गलत निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने वाली होती हैं कि बच्चा जो है वो उस जिसके कोपिंग मैकेनिज्म से डेवलप नहीं हुए हैं, हम उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा कम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कि कई बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी एक कंप्लेंट होती है। ठीक है, एक जगह टिक कर नहीं बैठना, इनअटेंशन, पढ़ाई में ढंग से ध्यान नहीं लगा पाना। तो इस ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिकायत है जो कि ना कम से कम 6 से 8% बच्चों के अंदर एडीएचडी के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ज्यादातर अनट्रीटेड जाते हैं और जिसके अडल्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत वर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एडीएचडी को का अर्ली आइडेंटिफिकेशन, खास तौर पर ऐसे बच्चे जो कि अपने पैदाइश के पहले साल में किसी भी प्रकार की बीमारियों से सफर करे हैं, कोई भी तरह की दिक्कत उनको रही है, मेडिकल कंडीशन, कई बार जॉन्डिस की दिक्कत देखी जाती है बच्चों में, डिलेड क्राई की होता है कि ये बच्चा काफी देरी से रोया है, तो उनमें हम देखते हैं कि इस तरह के चेंजेस जो है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, वो ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है चाइल्ड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स का, वो है इरिटेबिलिटी। बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल महसूस करने लग जाता है, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करने लग जाता है, कई बार सेल्फ बाइट करना, हेड बैंग, दीवार में सर मारना, ये ऐसे लक्षण जो बच्चों में आमतौर पर देखे जाते हैं। और जो है पेरेंटिंग की अगर हम बात करना चाहें तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो होती है, खास तौर पर जिसमें अनड्यू एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे से। अभी तो वो मतलब 10वीं 12वीं में ही नहीं आया और पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, या फिर ये तो आर्मी में जाएगा। सो वी हैव टू लेट हिम मेक हिज चॉइसेस, and for that we have to give him some time and let him decide what he wants to do. तो ये चीजें भी गलत हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स जो है एक टारगेट फिक्स कर देते हैं बच्चे के आगे, अच्छा क्लास में टॉप करना है तेरे को, है ना, टॉप ही करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको डांट पड़ेगी। ठीक है, हम उसकी बात सुनने से ज्यादा हम उसको ऑर्डर्स पास करते हैं जो एक आर्मी मैनर में। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज द बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, जहां पर हम बच्चे को बोलने का मौका देते हैं। अगर किसी भी प्रकार से उसको कोई परेशानी है तो हमें कन्वे कर सके। अगर बच्चा आकर के हमको कह रहा है कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो हमें उसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि क्यों है ऐसा, ऐसा किसने कहा, कहाँ, कहीं हमने उसका स्कूल चेंज कर दिया उसको बिना पूछे, उसको बिना उससे कंसल्ट किए, चाहे उसको मीडियम की वजह से किया हो या और किसी कारण से, कहीं इससे तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोई रिसेंट ऐसा इवेंट हुआ हो सकता है कि हमने अपना घर बदला हो कि वहां उससे कोई दिक्कत है, हो सकता है कि वो बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहता था और हम उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं कि उससे कहीं परेशानी है उसको। तो ये सारी कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। कई बच्चों के अंदर जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स लोगों को लगता है, लेकिन साइकाइट्रिस्ट से वो कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऑटिज्म हो गया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो गया, ये इस तरह की महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनमें टाइमली इंटरवेंशन चाहिए होता है। कम से कम 6 साल के पहले अगर ये चीजें डायग्नोस हो जाएं तो काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक स्टेट ऑफ रिफ्यूजल में पेरेंट्स कई बार रहते हैं। तो ये सारी चीजें गलत है, तो और हमें काफी ओपन माइंड से इन चीजों को अंदर देखना चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि हम अगर कोई कारण है तो उसके अंदर जा सकते हैं। जहां तक रही कि हम किस प्रकार से इसका हल निकाल सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन का, तो देयर इज ऑलवेज अ टेलर मेड प्लान फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। उसके पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट अलग होता है हर व्यक्ति का, हर सब्जेक्ट का, हर पेशेंट का, और उसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग होती हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो है मैनेजमेंट प्लान भी अलग अलग होते हैं। तो अनटिल और अनलेस देयर इज एक जनरल स्कीम अगर मैं बता पाऊं कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए एक हेल्दी मेंटल स्टेट के लिए, तो सबसे पहला तो है आपको डाइटरी डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि फूड हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखो। स्लीप हाइजीन है उसको फॉलो करना चाहिए। और बिहेवियरल एक्टिवेशन है, जैसे कई बार माइल्ड डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं कि यार कहीं जाना ही नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना। तो एक व्यक्ति जो सबसे अलग बैठा है उसके दिमाग में कई सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। उसको ये भी लगने लग जाएगा कि यार लोग तो मेरी हंसी उड़ाते हैं, नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाएगी कि यार मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि लोगों के बीच में जाऊं। फिर वो जितना अलग होना रहना शुरू करेगा, जितना आइसोलेशन में रहना शुरू करेगा, उतनी ज्यादा ये नेगेटिव इमेज और बढ़ती जाएगी, और उसकी डिप्रेशन की सिवियरिटी इतनी और बढ़ती जाएगी। फिर डिप्रेशन और सिवियर होगा और नेगेटिव इमेज बढ़ती जाएगी, वो और ज्यादा आइसोलेशन में चला जाएगा। तो एक विशियस साइकिल है जिसको हमको रिवर्स करना ही पड़ेगा। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन में ये है कि अगर आपकी इच्छा नहीं भी होती है किसी भी तरह का कोई काम नहीं करने की, और आप महसूस करते हो मन से कि मैं उदास हूँ, तो आपको कोई ना कोई एक नई हॉबी जोड़ने की सोचना चाहिए, करना चाहिए। चाहे वो एक 20 मिनट वॉक ही क्यों ना हो सुबह सुबह। अगर हम एक्सर्शनल एक्टिविटी कोई भी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें पसीना आए या फिर हार्ट बीट हमारी रेज हो, तो हमारे ब्रेन से कुछ फील गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स या एनकेफेलिन्स कहते हैं। दे हेल्प अस फाइट दिस सैड स्टेट ऑफ माइंड। तो इसके अलावा जो है फूड हाइजीन के बारे में मैंने आपको बताया, सॉरी मैंने आपको बताना चाहूंगा कि फूड हाइजीन में ये ध्यान रखना होता है कि हमें एक रेगुलर मील्स जो है अपने कभी स्किप नहीं करने चाहिए। क्रैश डाइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर महिलाओं के अंदर ये देखा गया है कि स्पेशली उनको अपना इमेज को लेकर के ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है, तो वो लोग क्रैश डाइट करते हैं, ठीक है। जो नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के लिए, वो उनकी डेफिशिएंसी से सफर करते हैं, और इवेंचुअली ये जो है आपके ब्रेन को अनहेल्दी बनाता है। सो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ हेल्दी डाइट, एंड योर डाइट प्लान मस्ट बी रेगुलर वन, कि आपको ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट करना है, और आपको लंच के टाइम लंच, और डिनर के टाइम डिनर। कोई मील स्किप नहीं करना है। डिनर आपका सबसे लाइट मील होता है दिन का, और ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो आपकी हैवी मील्स होते हैं जो आपको डे लॉन्ग एक्टिविटीज को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। स्लीप हाइजीन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है संक्षेप में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि योर बेड शुड नेवर बी यूज्ड फॉर डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर स्लीप, ठीक है। आपको जब नींद आए तभी आप बिस्तर पे जाइएगा, उसके अलावा ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई भी उस पर कर रहे हैं, खाना भी उस पर खा रहे हैं, हम उस ऐसे ही रेस्ट करने के लिए उस पर लेटे हैं, या फोन उस पर बैठ के चला रहे हैं, गेम उस पर खेल रहे हैं।
तो हमारी बॉडी जो है वो काफी स्मार्ट होती है, वो चीजों के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी कर लेती है. तो इफ यू टीच योर बॉडी that your bed is to relax, your bed is to read, your bed is a place where you can do any other stuff, then it will be difficult for you to fall asleep. आपको दिन के वक्त जो है नैप अवॉइड करना चाहिए. किसी भी तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत ही ज्यादा एक्सर्शन वाली, वो शाम को 5 बजे बाद में आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए. तो ये कुछ एक बेसिक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी. डॉक्टर, ये अंशिका माथुर हैं, वो जानना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना क्या डिप्रेशन है. और एक और सवाल है पूनम श्रीवास्तव का कि फ्रीक्वेंट टायर्डनेस है जो इरिटेशन में रिजल्ट करती है, वही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, इरिटेशन आना, क्या वो स्ट्रेस या डिप्रेशन है, और अगर है तो हम उससे कैसे डील करें शुरुआती स्टेज में. इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक माइनर सिम्टम्स है. सिम्टम्स में आता है कि इरिटेबिलिटी या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना. हाँ, ये डिप्रेशन का एक माइनर सिम्टम है. अगर आपके अंदर साथ में दूसरी चीजें भी देखने को मिलती हैं, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स जो एक इम्पॉर्टेंट माइनर सिम्टम है, कि रात को सोते हैं लेकिन बार बार नींद खुल जाती है और दोबारा सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आ रही है, तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए. हो सकता है आप डिप्रेशन से पीड़ित हो. और दूसरा क्वेश्चन है कि जो फ्रीक्वेंट टायर्डनेस है, थकान, कि जब कई बार हमें बहुत थकान फील होती है, जैसे आपने बोला है मोस्टली लेडीज में होता है कि हम सुबह उठते हैं और हमें थकान महसूस हो रही है, और उसकी वजह से हमें इरिटेशन भी होती है. शायद स्लीपिंग पैटर्न उसका एक वजह हो सकती है, या बेड को जैसे आप बोल रहे हो यूज करना फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. तो इस सब की वजह से हो सकता है कि हमें वो थकान हो. तो उस थकान की वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों पे गुस्सा निकलता है ज्यादातर मदर्स का, और कोई जगह नहीं होती. तो वो जो इरिटेशन होती है उसे हम किस तरह से डील करें? क्या वो स्ट्रेस है या क्या वो डिप्रेशन है? ये दोनों ही चीजें हो सकती है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रेस प्रीकर्सर है डिप्रेशन का. आप स्ट्रेस्ड हैं तो हो सकता है कि किसी रीसेंट इवेंट की वजह से हो सकता है कल मेरे एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं सब पे अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ. लेकिन ये वाली स्टेट अगर 15 दिन तक बनी रहती है और मैं 15 दिन तक ऐसा ही कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खाना भी छोड़ चुका हूँ, खुद का भी ध्यान नहीं रख रहा, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन मेरे लिए हो सकता है डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाए. तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं. इट वारंट्स फॉर डिटेल्ड इवैल्यूएशन. इफ इट हैज परसिस्टेड, अगर 15 दिन से ज्यादा अगर आपके साथ ये सिचुएशन रहती है तो आपको इसके लिए इवैल्यूएशन सीख करना चाहिए. हेलो तबस्सुम मैम, एक मिस्टर ऋषभ पुनिया है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ. SSRIs कितने टाइम के लिए सेव रहते हैं? हेलो 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 यस सर. ये SSRIs कितने मतलब SSRIs क्या सेफ है? SSRIs लेना, इज इट सेफ टू टेक SSRIs, antidepressants? Yes, it is safe depending upon the patient's profile, and amongst the SSRI, escitalopram is said to be the safest one. And what about paroxetine? Paroxetine is a good one. Basically, if a patient is having a profile of panic and generalized anxiety, you are going to get good results with paroxetine. The problem with medications is that sometimes we do not give them in optimum dosage, because there are a lot of times when patient starts guiding your treatment, so we should not get carried away. The prescribable dosage are sometimes high. कई बार हम लोग 12.5 पैरोक्सिडिन दे करके रुक जाते हैं कि नहीं यार देंगे, इससे पेशेंट है ना ठीक ठाक सा तो है, लेकिन आगे देने में वो कह रहा है कि नहीं मैं दवाई ज्यादा नहीं लेना चाहता. लेकिन अगर डोज अगर उसकी कंडीशन वारंट करती है कि यार हमको इसको डोज इंक्रीमेंट देना चाहिए, देन वी शुड गिव इट टू हिम. पैरोक्सिटिन जो है, खास तौर पर पैरोक्सिटिन और एसिक्लोप्राम की मैं बात कर रहा हूँ,
they are one of the safest drugs and in elderly as well. तो जो बुजुर्गों में जो दवाई इतनी सेफ हो सकती है तो फिर हम वो ज्यादातर लोगों में दे सकते हैं. Okay. And for OCD patients, it is prescribed. What is the best medicine to be prescribed? OCD and Undoubtedly fluoxetine. okay. Yeah. डॉक्टर आप But इसी के still- साथ शायद जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनको ओसीडी बता दीजिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि क्या होता है और किस सिचुएशन में हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें ओसीडी है तो. ठीक है. ओसीडी के बारे में बताना चाहूंगा. सबसे पहला तो 2 से 3% लोगों के अंदर ओसीडी होता है. तो अगर आप 100 लोग बैठे हैं तो आपके बीच में 2 से 3 लोगों को ओसीडी होने की संभावनाएं हैं. ठीक है. तो बहुत ही अच्छा खासा इसका प्रेवलेंस है और मेल फीमेल दोनों में बराबर इसका इंसिडेंस होता है. ऐसा नहीं कि महिलाओं में ज्यादा हो रहा है या फिर पुरुषों में ज्यादा हो रहा है. सिम्टम्स इसके बहुत सारे हैं. अलग अलग तरह के ओसीडीज आप मिलते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि रेपिटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स जो हैं, इम्पल्सेस हैं, इमेजेस हैं और अर्जेस हैं, ये ओसीडी के अंदर हो सकते हैं. मतलब किसी भी प्रकार के विचार, किसी भी प्रकार के चित्र आपके दिमाग में चलना, किसी भी प्रकार की अर्जेस होना, बार बार कोई इच्छा होना. कई ओसीडी के पेशेंट्स मेरे पास एक पेशेंट आया था कि मैं किसी भी अगर शार्प ऑब्जेक्ट के पास जाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं इसको उठाकर अपने को लगा लूं. मैं ना अपने आप को बंद रखता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ. मुझे हर चीज ऐसी दिखती है कि यार मैं इससे अपने आप को मार लूंगा. तो ये भी एक प्रकार का एक अर्ज है, ये जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओसीडी के अंदर. कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी चीजों को बिल्कुल जमा करके रखते हैं कि है ना ये यहीं रहनी चाहिए. कोई आदमी उसको हटा के इधर उधर रख देता है तो वापस उसको वहीं रखेगा और कहेगा कि ऐसा मत किया करो. वो लड़ भी लेते हैं. कई लोग सफाई के लिए इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि पूरे घर साफ करते रहेंगे. साफ कपड़े हैं उनको भी धोते रहेंगे, बार बार हाथ धोना. हालांकि अभी कोरोना वाले काल में ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा हो गई हैं, तो हम इन सब चीजों को ओसीडी के लिए जो है अभी विचारधारा थोड़ी बदली है. लेकिन ये सारे लक्षण जो हैं ओसीडी में, जो बार बार आने वाले लक्षण हैं, उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये जो है ईगो डिस्टोनिक होते हैं. यानी मरीज चाहता नहीं है कि ये वाली जो बातें हैं मेरे दिमाग में आए. उसको पता है कि ये बात मेरे दिमाग में आ रही ना जो गलत है. वो ताला बार बार चेक करेगा जाकर के. उसको पता है यार अभी तो लगाया था मैंने ताला, तो बंद ही होगा घर. वो बोलेगा नहीं यार क्या पता खुला रह गया हो. तो जाकर के उसको एक बार खींचेगा, 4 बार चेक करेगा और ये रिचुअल्स जो हैं अपने वो दोहराते रहते हैं. चिंता की बात जब तक नहीं है जब तक कि ये 1 घंटे से कम वक्त के लिए अगर हमेशा हो रहा है. लेकिन यदि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का 1 घंटा या उससे ज्यादा वक्त अगर इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ओसीडी से जो है पीड़ित है और इसको इलाज की जरूरत है. ओसीडी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ओसीडी में कम से कम 1 साल का ट्रीटमेंट चलता है. उससे कम किसी भी तरह के गाइडलाइंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है. अगर लेट बताया ले जाया जाए मरीज को साइकियाट्रिस्ट के पास में तो जरूर ये हो सकता है कि ज्यादा चले, इससे कम तो नहीं होता. और इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, दवाइयाँ और साथ में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है वो ओसीडी के लिए सबसे अच्छी बताई जाती है. तो ये दोनों चीजें हैं ओसीडी के लिए बेस्ट हैं. डॉक्टर एक और क्वेश्चन है मीनाक्षी भारद्वाज का. कई बार बच्चे अकेले हैंड्स मूवमेंट करते हुए खेलते हैं, क्या ऐसा कार्टून्स देखकर करते हैं? डिपेंड करता है कि अगर उस साथ में किसी तरह की कोई दूसरी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं तो. जो आप कह रहे हैं कि अकेले में अगर कोई बच्चे खेलते हैं, उसकी एज क्या है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. कि 4-6 साल के बच्चे जो हैं वो इमिटेट भी करते हैं. कई बार रोल प्ले जो है पेरेंट्स की तरह बिहेव कर उस तरह से खेलते हैं. ठीक है. तो अगर ऑटिज्म के अंदर देखा जाए तो बच्चे बिल्कुल सोशल नहीं होते हैं, बाकी दूसरे बच्चों के साथ में नहीं खेलते हैं,
लेकिन वो अकेले बैठे बैठे अपने हाथों से रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई एक्टिविटी अगर वो बार बार रिपीट करते हैं तो भी ये एक तरह का जो है सिम्टम्स है, स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, या फिर दूसरा कोई स्टीरियोटिपिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक्टिविटी नॉर्मल है, उनका डेवलपमेंट नॉर्मल है, सारी चीजें जो हैं उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, उठना बैठना चलना फिरना बोलना, ये सारी चीजें वक्त पे सीख रहे हैं और इसकी बात मान रहे हैं, ऐसा और ऐसा ओकेजनली हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा है कि जो है सॉलिटरी एक्टिविटीज में अकेले बैठे बैठे हाथों से खेलना, बाकी बच्चों के साथ में इंटरमिक्स नहीं होना, ये सारी चीजें घंटों तक चलती रहे और किसी चीज इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तब हमारे लिए जरूरी है कि इसको एक एवेल्युएशन की जरूरत है कि आप चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। अर्चना शर्मा जी का क्वेश्चन है, लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट याद रहना और चीजों को रखकर भूल जाना, क्या ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं? हाँ, चीजों को रख करके भूल जाना और लाइफ से जुड़े हुए जो इंसिडेंट है वो याद रखना, दोनों डिप्रेसिव सिम्टम्स में आ सकते हैं। स्पेशली जो फॉरगेटफुलनेस जो है उसके लिए हम कह सकते हैं। लेकिन कई बार आपको जो है सीधा डिप्रेशन के बारे में सोचने से पहले बाकी डिप्रेशन पहली बात कोमॉर्बिड भी होता है, तो इट कैन बी सेकेंडरी टू सम मेडिकल कंडीशन एज वेल। अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है, वो खास तौर पर महिलाएं, ठीक है, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, दवाइयां अगर नहीं ले रहे हैं तो हाइपोथायराइड स्टेट है, उसमें भी डिप्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो हाँ, ये लक्षण जो है डिप्रेशन में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, पूनम श्रीवास्तव जी ने पूछा है, इज डिनाइंग और अवॉइडिंग समथिंग कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस? डिनाइंग एंड अवॉइडिंग, इसके लिए मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आंखें बंद करने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाती है ना? तो सिमिलरली यू इट इज a human tendency, if you try to avoid something, you might be having flashbacks. So rather than avoiding and denying, the acceptance works for you. जो ये सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोई भी अगर चीज है, अगर वो जिस फॉर्म में है, अगर उस फॉर्म में आप स्वीकार कर लोगे तो आप ज्यादा खुश रह सकते हो। जैसे कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस होना लोगों से कि यार मैंने तो उसके लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो या तो आप उसके ऊपर पूरे दिन सोचते रहो कि यार ना उसने मेरे लिए नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया उसके लिए, मैंने तो बुरे वक्त में उसकी इतनी मदद की लेकिन वो तो मेरे से पूछता भी नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो आप किसी का बेसिक पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। you should rather leave this to person. You should stop expecting this much, and you should let the person behave the way he is or denying and denying doesn't work well in many cases, in most cases. Doctor, Mrs. Mishra का question है, what should parents do for a hyperactive child? For hyperactive child, for a child less than 6 years of age, first of all, a detailed evaluation from a child psychiatrist, and an active child can be seen in 25% cases of autism, and also in those who are having developmental challenges. So a detailed evaluation is always recommended either by a pediatrician or a child psychiatrist. So if you are calling, you are asking about the treatment plan, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर घर पे जो कर सकते हैं वो ये है कि अटेंशन एनहांसिंग टास्क है वो आप करना चाहिए आपको। साथ में you should always set rules about home. आपको कभी भी नेगेटिव कमांड्स बच्चे को नहीं देनी चाहिए कि आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ नहीं खाना है, या आपको ये नहीं खाना है।
अगर हम बच्चे ज्यादातर रिसेप्टिव हैं पॉजिटिव कमांड्स के लिए, हमारे साथ में अक्सर यही होता है कि कई बार हम बच्चों को कहते हैं क्या तुमको मना किया था ना यहाँ नहीं करना है, तुमने फिर भी किया, तो चांसेस ज्यादा होते हैं वो चीज रिपीट होने के। अगर हम ये बताएं कि करना क्या है, कि आपको वीडियो गेम नहीं खेलना है, उसकी जगह आप ये बताएं कि आपको पहले है ना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद में हम बात करेंगे बात, तो हो सकता है कि जो है हमें एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। और हाइपर एक्टिव चाइल्ड में जो साइकियाट्री से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनमें ADHD एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और 6 to 8% बच्चों में देखने को मिलता है। और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सब में दवाइयों से सबसे अच्छा सुधार अगर किसी बीमारी में होता है, किसी तकलीफ में होता है, तो ADHD के केसेस में देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा एक ब्रीफ मैनेजमेंट प्लान भी होता है जिसको हम पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, इसमें कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में पेरेंट्स को अपने बच्चों से कैसे डील करना चाहिए। ADHD के बच्चे बहुत डिमांडिंग भी हो जाते हैं एट टाइम्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला करके दो, और उनकी वो डिमांड्स बढ़ती रहती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि स्पेशली द मॉनिटरी वंस दे आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। जो है डिमांड्स ऐसी पूरी कर सकते हो जिनमें नॉन मटेरियलिस्टिक कंटेंट ज्यादा हो, आप अप्रिशिएट कर सकते हो, आप अपनी तरफ से ओकेजनल गिफ्ट दे सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा आपको पीछे पड़ जाए कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज के लिए और आप उसको लाके दे रहे हो, देन यू आर एनकरेजिंग हिज बिहेवियर, तो आपको उसके लिए थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। You should never reward a child by giving huge gifts without making any positive changes which you want to see as a parent. आप एक अभिभावक की तरह जो सकारात्मक बदलाव चाहते हैं बच्चे में, अगर वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, उसके बिना आपने उसको पुरस्कृत कर दिया किसी भी तरह के। पेरेंट्स यू नो प्रॉब्ली सॉरी टू इंटरप्ट यू, कई बार क्या होता है पेरेंट्स के मे बी दे हैड अ चाइल्डहुड जहाँ पे उन्हें कुछ कमी रही हो, पर जब वो पेरेंट बनते हैं दे ट्राई टू लिव देयर चाइल्डहुड और वो सभी कमियां दोबारा से पूरी करना चाहते हैं, दोबारा से अपना बचपन जीना चाहते हैं, तो वो उन्हें ऑलमोस्ट जो पॉसिबल हो सके यू नो बाइंग गिफ्ट्स एवरी वीक एवरी डे और सो ऑन, यू नो वो करते हैं। क्या वो सही है? क्या उसका बच्चे के बिहेवियर पे असर पड़ता है और गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ उसकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से बढ़ेंगी क्या उस हिसाब से? This is where the problem arises from, because you were reared in difficult situation, you turned out to be a successful person. हम उसकी जो हमारा जो भी बच्चा है हम उसकी कंडीशंस को डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी लाइफ को गोल ओरिएंटेड रखना चाहेंगे कि उसको सारे जो लग्जरीज हैं, सारे गिफ्ट्स वगैरह हैं जो भी हैं वो मिले, लेकिन अगर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दो, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड नहीं रहेगा, वो उसके लिए एक यूजुअल मैटर हो जाएगा जिसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। तो इसकी जगह अगर आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे और अचीवमेंट बेस्ड अगर आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे कि हाँ इसने कुछ अचीव किया है इसलिए इसको मिला है, तो वो उसको और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि अपने जो दूसरे गोल्स हैं उनको अटेन करने के लिए। डॉक्टर बबीता जी का क्वेश्चन है, क्या डिप्रेशन सिवियर डिजीज है या ये या इसके कारण कोई और सिवियर डिजीज हो सकती है? डॉक्टर आई रिमेम्बर आई स्टडीड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, तो ये क्या उन्हीं की बात कर रहे हैं? No, psychosomatic disorders are entirely a different entity and they are found more commonly in women. Psychosomatic disorders जो हैं मोस्टली डिप्रेशन में भी सोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर दर्द होना, खिंचाव महसूस होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारी चीजें जिनको हम सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं ये डिप्रेशन में भी देखे जा सकते हैं। और हाँ, डिप्रेशन एक सीरियस इलनेस है, अगर अनट्रीटेड रहती है तो इस सिवियरिटी इसकी बढ़ भी सकती है और कॉन्सिक्वेंसेस जो है और भी वर्स हो सकते हैं, ठीक है। और डिप्रेशन बहुत तरह का होता है, सीजनल डिप्रेशन भी होता है, कई लोग सर्दियों में उदास हो जाते हैं, ठीक है,
तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, एक्सपोजर टू सनलाइट इज एडवाइज टू देम। उसके अलावा बाइपोलर डिप्रेशन होता है, जिसमें कभी तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, आप मनी स्पेंडिंग पे चले जाते हो, मन में बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, प्लान्स बनाते हो, लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, लोगों में दान धर्म की भावना बढ़ जाती है, पूजा पाठ ज्यादा करने लग जाते हैं। तो बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर ये मैनिक फेज होती है। लेकिन जब ये लोग मैनिक फेज से निकलते हैं तो ये इतने सिवियर डिप्रेशन में हो जाते हैं कि ये अपनी खुद के काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बाइपोलर डिप्रेशन होता है। यूनिपोलर डिप्रेशन की बात करें, मतलब जिनकी लाइफ में सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड आते हैं, इस तरह के जो मैनिक फेजेस जो हैं उनकी लाइफ में नहीं आती। तो यूनिपोलर डिप्रेशन एक बहुत बड़ा और ज्यादा डिसेबिलिटी है। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करूं मैं, तो महिलाओं के अंदर जो है सुसाइड रेट दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। जितने भी दुनिया भर में सुसाइड होते हैं 37% जो है वो भारत में हो रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ ह्यूज फिगर। और होता क्या है कि जो सेंस ऑफ वीकनेस हमने इसके साथ में जोड़ दी है कि अरे यार इसको डिप्रेशन हो गया, एक है ना जो ये तो कमजोर लोगों की बीमारी है, एक स्टिग्मा जो हमने जोड़ दिया, अरे डिप्रेशन दिखाने, अरे पागलों के डॉक्टर को दिखाने जा रहा है। तो ये जो स्टिग्मा है इससे बाहर आना पड़ेगा आपको। जो पेशेंट्स हैं आप लोगों के बीच में ही है, हमारे बीच में ही है, उनको ये मौका देना पड़ेगा कि यार हम उनकी वो ये चीज एक्सेप्ट कर पाए, हाँ यार मुझे ये तकलीफ है, ये बीमारी है और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। कई बार शर्म के चलते वो इससे आपको नहीं बता पाते हैं, इससे बाहर नहीं हो पाते। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में मैं बात करता हूँ कि apart from being a part of depression, somatization sometimes can be seen as a whole soul entity, कि शारीरिक लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं किसी के अंदर कि ना वो हमेशा दर्द वगैरह की शिकायत करते हैं, हमेशा सिर दर्द की शिकायत करते हैं, पेट दर्द की शिकायत करते हैं, बैक एक की, क्रॉनिक बैक एक, जॉइंट पेन्स की, लेकिन उसकी जांचें करा रहे हैं तो जांचों में कुछ नहीं निकल रहा, सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं। और कई बार तो शायद स्थिति ये भी हो जाती है कि जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स हैं वो इतने हर महीने जांचें करा, हाइपोकॉन्ड्राइसिस डेवलप हो जाता है उनके अंदर। तो दिक्कत यही रहती है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक डिसऑर्डर है साइकोसोमैटिक। आपको इसका इलनेस मॉडल समझना होगा। अगर इसका इलनेस मॉडल अगर हम पेशेंट को समझा पाए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू दे आर ट्रीटेबल। चंदना शर्मा का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन वर्क्स फॉर चिल्ड्रन टू हेल्प इन कमिंग आउट फ्रॉम द डिप्रेशन? Meditation in children, I don't think it's a good idea, because the intricacies of meditation, are you talking about meditation or medication? Spelling to meditation ki hai, I'm not sure if she means meditation or medication, but meditation hi likha hua hai. What kind of meditation works for children to help in coming out of depression? A kind of meditation which helps individuals of every age is breathing relaxation technique, and another one is Jacobson's progressive muscle relaxation. So these are the two type of physical exercises, or you can call them meditation as well. Breathing relaxation is a meditation. अगर हम आम हिंदी भाषा में बात करें तो जो अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, या स्पेशली अनुलोम विलोम, ये एक तरह का ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक है। 2:1 रेशियो में अगर इसको करते हैं तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जो इमोशंस हैं उन पर, मूड है उस पर। डॉक्टर, अब लॉकडाउन जब चल रहा था, हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, और ये मेरा क्वेश्चन है, और व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट? क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी रिसेंटली बहुत से केसेस सुने हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? और हम कैसे जानेंगे कि कोई बंदा लॉकडाउन की वजह से परेशान है या
हम अगर है भी तो हम किस तरह की हेल्प ऑफर कर सकते हैं उसे? जी, मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा इसके अंदर। सबसे पहले तो जो लोग पहले से डिप्रेशन से या दूसरी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित थे, उनके लिए मेंटल हेल्थ जो एक्सेसिबल नहीं थी लॉकडाउन में फॉर मेजर एंटिटी, तो वो जब हैं वो रिलैप्स हुए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हुई है, डिसकंटिन्यू कर दिया कई लोगों ने ट्रीटमेंट। The kind of cases you are talking about, few of them were also suffering from depression and they had stopped treatment. उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो मैं कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सुसाइड्स ज्यादा देखने को मिले हैं लॉकडाउन के अंदर। तो जो फाइनेंशियल बैकबोन है कंट्री की, वही टूट गई। अगर कोई व्यक्ति जो है वो जो स्पेशली जो मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस वाले लोग हैं, उनके अंदर जो है डेट्स हैं वो बढ़ते गए, जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली को, उनके अंदर जो है डिप्रेशन के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने परिवार से दूर रह रहे थे, कई जो घर में लोग हैं वो एम्प्लॉयड थे आउट ऑफ स्टेट, तो जो जहां था वो वहीं रह गया। कई बच्चे हैं पढ़ने के लिए कोटा में थे, वो वहीं रह गए। तो दे हैड टू पे फॉर एन इमोशनल टोल फॉर द अनसर्टेनिटी। ये जो एक अनिश्चितता बन गई थी कि यार कब लॉकडाउन खुलेगा, कब चीजें सुधरेंगी, एक सेंस ऑफ अप्रहेंशन था कि यार ये कोरोना में हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। इसने उस एंजाइटी के ऊपर और एड ऑन का काम किया। तो इन सब चीजों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो है केसेस जो थे दे वर ऑन ए राइज। कर हम इसके अंदर ये सकते हैं कि अगर आप डिस्टेंट भी हैं, स्पेशली अभी कई लोग महाराष्ट्र में हैं, वहां पर अभी भी एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है। अगर आप दूर भी हैं तो भी अगर आप अपनी कनेक्टिविटी Doctor, I'm having difficulty hearing you. I think he got disconnected. I'll just maybe there's something network problem. Yeah. वैसे भी I think time is over now, है ना? Can you hear me now? I think network problem है कुछ, इस वजह से डॉक्टर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके, सो अगर किसी के और भी अभी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और तबस्सुम मैम, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर की कोई कांटेक्ट नंबर या फिर कुछ ईमेल आईडी वगैरह मिल जाए, सो दैट जिसको और भी कुछ जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई एम फ्रॉम आसरा फाउंडेशन जयपुर। Yes. और जो डॉक्टर हैं डॉक्टर धनदीप सिंह, वो हमारे आसरा फाउंडेशन जयपुर से एसोसिएटेड हैं। तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को देता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप इस हेल्पलाइन पे या तो व्हाट्सएप या फिर एसएमएस से भेज सकते हैं। उसके जो आंसर्स होंगे वो उनको हम बता देंगे।
हाँ जी, प्लीज आप बता दीजिए। 701 701 401 401 5902 5902. It's 701 1. Hello. 5902, right? 701 401 5902. एक नंबर और ले लीजिए। हाँ जी। 96940 96940 87 87 208. हेलो। 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 हाँ, लास्ट में 208। या विवेक जी। Hello, Tabassum ma'am, are you there? Hello. Yeah. Yeah, so I think डॉक्टर ने रिकनेक्ट नहीं किया है अभी। तो चंदा मैम, मैंने नंबर डाला है करेक्ट, ये चैट बॉक्स में ही नंबर है। सो जिनको भी नंबर नोट करना है वो चैट बॉक्स से नंबर ले सकते हैं, और किसी के कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए हैं सो आप उनसे कनेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, थैंक यू विवेक सर, एंड थैंक यू। थैंक यू। अभी तुमने खाया है ना, खिचड़ी खाई है ना? थैंक यू मैम, गुड बाय। थैंक यू Bye. तबस्सुम, अच्छी थैंक बना यू। देते थैंक हैं। यू डॉक्टर। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू तबस्सुम मैम। थैंक यू। थैंक यू। मैगी तो नहीं है, वो वाली मैगी सेमी मैगी है, मगर मैगी नहीं है घर में, नहीं है। उल्लू बना मैं उल्लू को, उल्लू कौन बनाएगा? उल्लू तो खुद है। अरे उल्लू को
में जाना है तो मैं ऐसे बोलना होगा and read the TV and read the book. क्या? टीवी बुक के अंदर जाना होगा तो मैं बोलना होगा एंटर and read the book. एंटर द बुक एंटर द टीवी टीवी। अब टीवी के अंदर कौन घुसेगा? मैं अरे अपन दोनों बोलो बुक के अंदर बुक के अंदर तो पानी उनकी तभी तो खुलेगी ना। हम बुक के अंदर कैसे घुस सकते हैं? तो लाइक कुछ ना कर सकती है मैं, है ना? तो उन्होंने मुझे बताया है कैसे। हाँ पहले ना थोड़ी देर बोल के and read the book and read the book